قابل یقین کہانی۔ ان لوگوں کے لیے یہ کہانی اہم ہے جو ماورائی مخلوق اور جنات کے وجود کو مانتے نہیں۔ اکثر مجھے میرے دوست احباب اور گھر والے باتوں باتوں میں بتاتے تھے کہ جن، پری، بھوت، پریت اور دوسری اندیکھی مخلوقات کا وجود دنیا میں موجود ہے، اور یہ غیبی مخلوقات بعض اوقات انسان کو نقصان پہنچا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پر میں ایسی باتیں کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر تمسخر سے مسکراتی اور کہتی، اپنے اندر کا ڈر چھپانے کے لیے ایسے ڈرپوک انسان کس غیبی شے جو مادی وجود کا حامل ہی نہیں کا نام لے کر ان بیچاروں پر الزام لگاتے ہیں۔ میں سوچتی کہ اگر انسان اور حیوان کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی وجود ہے تو ہماری نظر اس کے وجود سے کیوں نہیں ٹکراتی؟ کیوں ہم اسے نہیں دیکھ سکتے؟ ایسے بے سروپا باتوں سے ان کی موجودگی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میرا یقین ہے کہ جب تک میں ان غیر مرئی وجود کو نہ دیکھ لوں تب تک میں ان پر یقین نہیں کروں گی۔ اور پھر اس کے بعد میرا ذہنی امتحان شروع ہوتا گیا، ایک ایسا امتحان جس کے لیے کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب بے حسی پیدا ہونے لگی، مزاج میں بیزاری طبیعت کا خاصہ بنتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے تمام گھر والے ڈسٹرب اور غصہ کرنے لگے تھے۔ ہر وقت میرا اکتایا ہوا رویہ سب کے لیے ہر کسی کو حیرت کا باعث بنا۔ میں تو ہر بڑی بات کو سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرتی تھی، اب ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر اعتراض کرنے لگی۔ میری قریب ترین سہیلیاں میری اس حرکات کو بری طرح سے محسوس کر رہی تھیں۔ ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی، صدف تم ایسی تو نہ تھی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کس بات پر ناراض ہو؟ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ پھر میں سوچنے لگتی کہ یہ سب کچھ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ آخر میں ہر وقت اتنا اکتائی ہوئی کیوں رہتی ہوں؟ راتوں کو سونے سے ڈر لگنے لگا، اگر آنکھ لگی تو وہی منحوس خواب دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے۔ سارا دن عجیب طرح کی بے چینی رہتی، رات کی نیندیں جیسے ڈراؤنے خوابوں نے اڑن چھو کر دی تھی، وہی خواب جنہوں نے میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی، وہ خواب جس میں خود کو انجان جگہ پر دیکھتی، اپنے علاوہ کسی عجیب قسم کی مخلوق کو دیکھتی۔ وہ مخلوق عجیب الخلقت ہوتی اور وہ مخلوق جسموں میں مجھ سے بھاری اور قد میں اونچی ہوتی تھی۔ کبھی پہاڑوں پر سے ان مخلوق کو اپنی طرف اونچائی پر چڑھتے ہوئے دیکھتی جو اپنے لمبے لمبے اور کالے ہاتھوں سے مجھے بلاتے۔ میں یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر اٹھ جاتی۔ کبھی جنگلوں میں خود کو عجیب قسم کی مخلوق کے گھیرے میں پاتی اور ان سے بھاگ رہی ہوتی۔ وہ مخلوق میرے پیچھے بھاگ رہی ہوتی اور میرے پیچھے پیچھے عجیب زبان میں باتیں کرتی۔ کبھی میں خواب میں خود کو زمین کی تہہ میں دیکھتی اور ڈھیر سارے سانپ میرے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سانپ انسانی قالب میں آ جاتے اور میں دیوانہ وار بھاگ کھڑی ہوتی۔ کبھی دیکھتی کہ کوئی انجانی مخلوق مجھے آوازیں دے رہی ہوتی اور وہ آوازیں ہوتی، آؤ ہماری دنیا میں، آؤ ہم دل کی گہرائی سے تمہیں اپنی دنیا میں خوش آمدید کہیں گے، تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرائیں گے اور تمہیں دکھائیں گے کہ ہماری دنیا کے نافرمانوں کو کیسی کیسی سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ وہ خواب تھے جو اکثر وقفے وقفے سے مجھے نظر آتے اور میں خوف کے مارے ساری رات جاگتی رہتی، کسی سے کہہ کر خود کا تماشا بنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں اکثر ان کے بارے میں سوچنے لگی جو ہماری دنیا کی بجائے دوسری دنیا کے مخلوق تھے، یعنی قوم جنات۔ سوچنے سے خود کو میں جتنا روکتی اتنی ہی شدت سے ان باتوں کو سوچتی اور میرے اندر غصے کا مادہ پروان چڑھتا۔ اگر کوئی نرمی سے مجھے سمجھانا چاہتا، میں انتہائی ترشی سے نہ سمجھتے ہوئے اسے ہی ڈانٹ دیتی۔ اس عرصے میں مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھ میں ایک انجانی طاقت بھر گئی ہے اور میں اس طاقت کے سامنے بالکل بے بس ہوں، اور یہی انجانی طاقت مجھے میری شخصیت کے بالکل الٹ ثابت کرنے پر تلی ہے۔ میری یہ ساری کیفیات، ڈرونے خوابانہ اپنے آپ میں مگن رہنا مجھے اندر سے ہی کھوکھلا کر رہے تھے۔ میں اس حالت کو سب پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری فیملی حیران پریشان میرے معمولات نوٹ کر کے میری ان تبدیلیوں کا سبب جاننا چاہتی تھی۔ اب مجھے اپنے ارد گرد ایک نامانوس وجود کا احساس اٹھتے بیٹھتے ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا جیسے میں کوئی نادیدہ قوت کی نظر میں آ گئی ہوں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتی کوئی انجانا وجود میرا پیچھا کرتا۔ کسی کو تو محسوس نہیں ہوتا، مگر مجھے ضرور محسوس ہوتا تھا۔ اسی احساس کے ساتھ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بار بار میرے دماغ میں آنے لگا، جس میں جنات کا ذکر بہت واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ پھر میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کہیں گڑبڑ ضرور کی ہے میں نے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا ہے میں نے جس سے جنات کی نظر مجھ پر اور میرے خیالات پر پڑی۔ میرے کالج کی سٹڈی کافی متاثر ہو رہی تھی، ٹیچر الگ غصہ کرتی۔ اس سچویشن سے تنگ آ کر اپنا مسئلہ میں نے اللہ کے حضور پیش کر دیا، دن رات عبادت کرنے لگی، ہر وقت وظائف پڑھتی رہتی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔
अब मेरा दिल मुतमईन होने लगा था। इबादत में यकसुई मेरे अंदर के खौफ को मिटाती चली गई, लेकिन बस एक एहसास बाकी रह गया था कि कोई अनजाना वजूद मेरे आसपास रहता है। फिर मैं तो एक लड़की थी, अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास बहुत ज्यादा परेशान करता था। ऐसे हालात में 4 माह बीत गए। अपने मिजाज में तब्दीली लाने के लिए अम्मी अबू से इजाजत लेकर मैं दूर रहने वाले चचा जान के घर चली गई। फरीद चचा अबू के सबसे छोटे भाई थे और अपनी नौकरी की वजह से हमसे दूर रहते थे। उनकी बेटियां मेरी हम उम्र थी। खुद को नई जगह नए घर पाकर मैं सोच रही थी कि अब उस नादीदा वजूद से मेरा पीछा छूट जाएगा, जिसका पल पल एहसास मुझे मार देता था, जो सबसे अलग करने का मुझे सबब बना था। मगर यहाँ भी वही कुछ होने लगा था जिससे भागकर मैंने उस शहर में पनाह ली थी। मेरा हर वक्त खोया खोया रहना, डरा सहमा रहना, चचा की बेटियों ने भी मेरे इस रवैये की वजह से मुझे नजरअंदाज कर दिया। चचा मुझसे वजह पूछते, मगर मैं चाहकर भी उनको कुछ न बता पाती। चचा जान ने मुझे शाम के वक्त स्टडी रूम में बुलवाया और मुझसे मेरे रवैये के मुतालिक बहुत ही प्यार से पूछा। मैंने हैरत अंगेज तौर पर चचा जान को वो सब कुछ बताया जिससे मुझे कोई अनजानी ताकत हमेशा रोक देती थी। चचा जान मेरी सारी बातें बड़े दिलजमी से सुनते रहे। बेटा, कोई ऐसा वाकया जिसके बाद तुम्हें महसूस हुआ हो कि कोई अनहोनी बात हुई है? नहीं चचा जान, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता। ये रखो अपने पास और याद करने की कोशिश करो। शाबाश, तुम्हें जरूर याद आ जाएगा। चचा जान ने एक तावीज मेरे हाथ पर शफकत से रखा और बोले। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। तावीज पहनना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बिल आखिर मैंने अपने गले में वो तावीज पहन लिया। रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर अपनी याददाश्त दोहराने लगी और शायद तावीज का असर था कि मेरे दिमाग में ट्रेन वाला वाकया आ ही गया। मैं बहुत हैरान हुई कि पहले ये वाकया मुझे क्यों नहीं याद आया। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने अकलौते मामू जान के घर गई थी। वापसी पर मैंने बहुत इसरार करके मामू जान को अपने साथ आने से रोक दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मामू बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। मामू जान ने स्टेशन पर एक औरत से कह दिया कि बच्ची का ख्याल रखना, आप ही के शहर में उतरेगी। मेरी खिड़की वाली सीट थी। मैं बाहर के नजारों में मगन थी कि मुझे खातून की आवाज आई और मैं चौंक पड़ी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो मुझसे किसी मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती थी। पहले इधर उधर की बातचीत होती रही, फिर अचानक अपना मौजू वो जिन्नात की तरफ ले गई। इस मौजू से तो मुझे अल्लाह वास्ते का बैर था। पहले तो वो अपने गांव के छोटे मोटे वाकयात बयान करने लगी, फिर एक लड़की का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया जिस पर एक जिन आशिक हो गया था और उसके होने वाले शोहर को जिन ने मौत से हमकनार कर दिया था। हम बातें कर रहे थे कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उस स्टेशन से एक नौजवान ट्रेन पर चढ़ाया। उसके कंधे से एक बैग लटका हुआ था। वो बहुत खूबरू जवान था, जैसे कोई शहजादा हो। मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पर टेक लगाकर आराम से बैठ गया। ट्रेन दोबारा चल पड़ी। औरत ने दोबारा जिन और लड़की का किस्सा शुरू कर दिया। इस बार मुझे गुस्सा आया तो खातून से साफ कह दिया, ये सब झूठ है, बकवास है। वो लड़की जरूर कोई ढोंग कर रही होगी और जिन बिन कुछ नहीं होता। ये हम लोगों के फर्जी और फरसूदा ख्यालात होते हैं जो दूसरों पर रोब जमाने के लिए हम अनदेखी वजूद का नाम ले लेते हैं। और हाँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो जरूर यकीन कर लेती। इतने में मैंने नोट किया कि वो नौजवान मेरी बात सुनकर आंखें खोलकर बिल्कुल सीधा होकर बैठा और गौर से सुन रहा है। अगर ये सब तुम्हारे साथ होता तो तुम होश खो बैठती या फिर पूरी तरह पागल हो जाती। मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को देखा था। जब जिन का असर उस पर होता था तो वो मर्दों की तरह भारी आवाज में बातचीत करती और वो आवाज इतनी भयानक होती थी कि कानों के तो जैसे पर्दे फाड़ दे। और वो लड़की इतनी धान पान सी थी कि बमुश्किल ऐसी आवाज निकाल सके। और हाँ, वो जिन तो लड़की से नाराज था, इसलिए उस पर अपना अजाब मुसल्लत किया हुआ था। दरअसल जिन जब भी उससे मिलने आता वो लड़की चीखती चिल्लाती और डर जाती और फिर उसने अपने मंगेतर से मशवरा करके जिन को खत्म करने के लिए कोई साजिश भी तैयार की थी, मगर जिन ने उसके मंगेतर को ही मार दिया और उसके वजूद पर काबिज हो गया। जो भी हो, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। इस किस्म के किस्से और कहानियों से तो हॉरर मैगजीन्स भरे पड़े हैं। हाँ, जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो तब मैं यकीन कर लूंगी। अरे अल्लाह ना करे तुझे कभी कोई जिन दिखाई दे। अस्तगफार पर कभी कभी मजाक में भी कही हुई बातें सच साबित हो जाती हैं। खैर, फिर हम दोनों चुप करके बैठ गईं और मैं खिड़की से बाहर के नजारे देखने लगी। अचानक ही किसी की तेज निगाहों की तपिश मेरे वजूद को बेचैन कर गई। मैंने सामने देखा तो निगाह उस नौजवान पर पड़ी जो सामने बैठकर पुरसोच निगाहों से मुझे घूर रहा था और उसके लबों पर तमस्खर उड़ाती मुस्कान भरी पड़ी थी। वो मुस्कान बिल्कुल वैसी थी जैसी जिन भूत के वाकयात सुनकर मेरे लबों पर होती थी। मेरा देखना था कि उस नौजवान ने फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। इतने में एक और ट्रेन स्टेशन आया। ट्रेन रुकी और वो नौजवान उस अनजाने स्टेशन पर उतर गया।
उसी पल ट्रेन से बाहर एक तवील उल उमर बुढ़िया चीजें बेचती हुई मेरी खिड़की की जानिब इतनी जोर से चिल्लाई कि मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। जब बुढ़िया पर नजर पड़ी तो दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। उस बुढ़िया का चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा था, आंखें अंदर को धसी हुई, वो नहीफ और मिनमिनी बदन की मालिक थी, मुंह अध खुला, दांतों से आरी। मैं ऐसे डरी जैसे कि भयानक किसी बदरू को देख लिया हो। उस बुढ़िया ने अपनी चीजों वाली भरी टोकरी मेरे आगे कर दी। मैंने उस टोकरी को धक्के से परे हटाया और गुस्से से बुढ़िया को बुरी तरह डांट कर भगाना चाहा। बुढ़िया मेरा रद्दे अमल देखकर मुंह बिगाड़ती चली गई और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी चलने लगी तो नौजवान दौड़कर दोबारा गाड़ी में चढ़ आया और मेरे सामने बैठ गया। सारा मूड उस भयानक बुढ़िया की वजह से गारत हो चुका था। ऊपर से उस नौजवान की तमस्खुर उड़ाती मुस्कुराहट जहर लग रही थी। एकदम ना चाहते हुए पता नहीं क्यों मैंने उस नौजवान को मुखातिब किया। सुनिए। जी फरमाइए। अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज कोई और सीट तलाश कर लें। मेरा इतना कहना था कि उसकी भवें तन गईं। उसके चेहरे का जाविया बदलते देखकर मैं फौरन बोल पड़ी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर आप बुरा ना माने तो। मैं वाकई घबरा गई थी कि ये नौजवान रात की तारीकी में कहीं मुझे चलती ट्रेन से धक्का ना दे दे, और ये सोचकर मैंने कानों को हाथ लगा दिया। ओह तौबा। नौजवान मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। फिर कुछ देर के बाद मेरा स्टेशन आ गया। मैं और खातून ट्रेन से उतरने लगी। खातून ने अपना सामान संभाला और फिर मैं उतरने लगी। मेरा बैग बड़ा था मगर भारी नहीं था। जब मैंने उसे उठाना चाहा तो ऐसा लगा जैसे मन भर वजनी हो, लिहाजा दुश्वारी होने लगी। ये देखकर मेरा वजनी बैग उस नौजवान ने हवा में ऐसे उठाया जैसे भारी बैग ना हो बल्कि कोई गुब्बारा हो या फिर रुई हो। मैं नीचे उतरी, उसने मेरा बैग नीचे उतारा और संजीदगी से मुझे कहने लगा, अपने ख्यालात को हर किसी पर सख्त करने की कोशिश न किया करें। ऐसा ना हो कि कोई हादसा पेश आ जाए। आज तो बच गई मगर हर जगह में नहीं हो सकता। जब मैंने नौजवान के अल्फाज सुने तो सुनकर ठिठक गई। कुछ और पूछती कि ये अल्फाज तुमने क्यों कहे, मगर ट्रेन चल पड़ी। मैं खड़ी हैरान रह गई कि ये क्या कहकर गया है। मेरा भाई स्टेशन पर मुझे लेने आया हुआ था। मैंने जब अपना बैग उठाना चाहा तो मुझे अजीब हैरत हुई क्योंकि अब बैग जरा भी भारी नहीं था। मैं भाई के साथ घर आ गई और इस वाक्य को नजरअंदाज कर दिया। जब ये वाक्य मेरे जहन में आया तो मैंने अपने चचा जान को पूरा वाक्य बता दिया। वो मेरे सर पर हाथ फेरकर बोले, बेटी मुझे जिस बात का डर था वही बात हुई है। चचा जान, इस वाक्य के बाद मुझे डरावने ख्वाब आना शुरू हुए। समझ में नहीं आता कि उस नौजवान ने मुझसे ये सब क्यों कहा। बेटा मुझे भी पता नहीं है मगर मुझे इतना यकीन है कि वो नौजवान जरूर जानता था कि तुम पर मुसीबत आनी है, इसीलिए पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया और वही बता सकता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। उसी नौजवान के पास इस पेचीदा डोर का सिरा है, वही ये उलझी हुई डोर सुलझा सकता है। मगर चचा जान, वो तो किसी और जगह का रहने वाला था और वो ट्रेन लाहौर तक जा रही थी। इतने बड़े शहर में हम उसे कैसे ढूंढेंगे। हाँ ये बात तो ठीक है मगर एक बात तो साफ हुई कि उसी तावीज की वजह से तुम्हारे दिमाग ने काम तो किया, और जिस बुजुर्ग ने मुझे ये तावीज दिया है वो बहुत अल्लाह वाले हैं, बल्कि वली अल्लाह हैं। मेरे दोस्त के वालिद मोहतरम हैं। जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ तो उनसे बात करके बिल्कुल मुतमईन हो जाता हूँ और वो यकीनन तुम्हारा मसला भी हल कर देंगे। चचा जान फिर मुझे उन बुजुर्ग के पास ले गए। उन्होंने तवज्जो से मेरी सारी बात सुनी। बेटा इस दुनिया में अल्हामी किताब कुरान मजीद है जिसमें इंसानों और जिनों के वजूद का बहुत वाज़ेह अल्फाज में जिक्र आया है, जिससे इनहराफ नामुमकिन है। वैसे तुम्हारी बात भी दुरुस्त थी, जब तुमने उन नादीदा वजूद को देखा ही ना हो तो फिर किस बुनियाद पर यकीन कर सकती हो। तुम नासमझ और कम उम्र थी। इस उम्र में तुम अपने नजरियात और मुशाहिदात पेश करना चाहती थी, इसलिए दूसरों की खास बात भी तुम्हें बेसरोपा लगी। वो बुढ़िया जिसे तुमने बुरा भला कहकर डांट दिया था वो उसी वजह से तुमसे बहुत नाराज थी। तुम्हारे रवैये से वो दुखी थी और वो तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, मगर उस नौजवान की वजह से खामोश थी जिसने तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त अपने सर ले लिया। लेकिन उस बुढ़िया को तुम पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए उसने तुम्हें ख्वाबों में तंग करना शुरू कर दिया। शाह साहब मैं समझी नहीं, वो बुढ़िया और नौजवान आपस में क्या रिश्ता रखते थे। बेटी दरअसल वो नौजवान और वो बुढ़िया इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से थे। वो नौजवान मुसलमान नरमखोर रहम दिल जिन था और वो बुढ़िया गैर मजहब से और शरपसंद जिन्नी थी। वही बुढ़िया तुम पर नाराज थी, जो भूल तुमसे हो गई थी। वो बुढ़िया उसका बदला लेना चाहती थी मगर नौजवान ने बुढ़िया को रोका और उसकी मिन्नत समाजत की। बुढ़िया ना मानी तो नौजवान ने तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा ले लिया और हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहने लगा, मगर तुम्हें एक अनजाने एहसास ने सताना शुरू कर दिया। शाह साहब की बातें सुनकर मेरे इर्द गिर्द धमाके से होने लगे। लेकिन शाह साहब वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है,
खौफ आता है मुझे उसके एहसास से, और उसने मेरी हिफाजत का जिम्मा क्यों लिया है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे हाथ की कलाई पर एक नीले रंग का निशान या तिल मौजूद है? मैंने जल्दी से कलाई देखी तो वाकई मेरे हाथ की कलाई पर तिल मौजूद था। हालांकि मैंने शाह साहब को अपना हाथ दिखाया भी नहीं था। मैंने पूरी आस्तीन वाली कमीज पहन रखी थी। मगर इस नुक्ते से क्या मतलब है? इसी वजह से तुम उसकी हिफाजत में हो, और वो कोई आम जिन नहीं है, सरदार जिन का बेटा है। बहुत मेहरबान और नरम खो है। वो खुद तो मुसलमान है, मगर वो बुढ़िया गैर मजहब थी, और उसे तुम्हारे ख्यालात जानकर और तुम्हारी डांट और फिटकार से उस बुढ़िया को तुमसे नफरत हो गई। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने ही वाली थी कि उस जिन को तुम पर तरस आ गया, और वो तुम्हारे और बुढ़िया के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। मगर इस निशान का सही मतलब क्या है? क्या ये किसी मतलब को जाहिर करता है? ये तो वो जिन ही बता सकता है जो तुम्हारी हिफाजत करता है। पर वो कैसे बताएगा? वो नजर तो आता नहीं है। आज वो नजर आ जाएगा। ये बोलकर शाह साहब मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। आधे घंटे तक शाह साहब कुछ पढ़ते रहे। फिर कमरे में धीरे धीरे धुआं सा उभरने लगा, और फिर उस धुएं ने उसी नौजवान की शक्ल इख्तियार कर ली। अब वो नौजवान अदब और एहतराम के साथ शाह साहब के सामने बैठा था। आप? उसको देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझसे क्या गलती सरजद हुई जिसकी आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अपने ख्यालात के इजहार पर पाबंदी तो है नहीं। अब जबकि मैंने यकीन को पा लिया है, ये सजा खत्म हो जानी चाहिए। मेरा पीछा छोड़ दें। हर वक्त साई की तरह साथ रहना, क्या ये सही या अच्छी बात है? मैं मान चुकी हूँ कि आप लोगों का वजूद इस दुनिया में मौजूद है, और देख भी चुकी हूँ। खुदारा मैं जहनी मरीज बन चुकी हूँ। किसी से बात नहीं कर सकती। हर वक्त तबीयत पर एक अजीब सा तासुर रहता है। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। वो नौजवान जिन कहने लगा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रहा ये सवाल कि मैं आपके पीछे क्यों पड़ा हूँ, तो मेरा जवाब यह है कि किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि आपकी हिफाजत कर रहा था कि हमारी कौम के किसी फर्द से आपको नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए अब तक आपके साथ था। मेरी हिफाजत की कोई खास वजह? क्या आप हर उस लड़की की हिफाजत करेंगे जिसको किसी जिन या किसी चुड़ैल से खतरा हो? नहीं, असल वजह मैं आपको बताता हूँ। जब आपने उस गैर मजहब बुढ़िया को डांट दिया तो मुझे भी उस वक्त आप पर गुस्सा आया, मगर बुढ़िया के अज़ाइम बहुत भयानक हो गए। वो हर हाल में आपको छट्टी का दूध याद दिलाना चाहती थी। मैं कभी बुढ़िया को ना रोकता अगर मैं आपके हाथ की कलाई पर इस नीले रंग का तिल ना दिखता। इसी तिल की वजह से आप मुझे अजीज हो गई। ऐसा हर तिल या निशान हमारे खानदान की विरासत में चला आ रहा है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यही हमारी असल पहचान बन सकता है। और फिर जब आपके हाथ की कलाई पर वही निशान पाया जैसे मेरे हाथ की कलाई पर है, जो हमारी विरासत की पहचान है, ये निशान नस्ल दर नस्ल हमारे हाथ की कलाइयों पर चला आ रहा है। लेकिन जब बिल्कुल वैसा निशान आपकी कलाई पर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप हमारी ही कौम की एक फर्द है, और मेरी नासमझी थी कि मैं आपको पसंद यानी चाहने लगा। मैंने उस बुढ़िया को समझाया कि वो आपसे दूर रहे। पहले तो वो ना मानी। वो बदस्तूर आपको ख्वाबों में डरावनी आवाजों से परेशान करती रही। अगर मैं बीच में ना होता तो पता नहीं वो बुढ़िया आपके साथ क्या करती। फिर मैंने उस बुढ़िया की बहुत समाजत की और फिर वो मान गई। उसने मुझसे वादा किया कि अब वो आपको हरगिज परेशान नहीं करेगी। मगर एक अनजाना खौफ मुझे लाहक हो गया कि अगर मैंने आपकी हिफाजत से गफलत बरती तो हो सकता है कि वो गैर मजहबी जिननी बुढ़िया आपको नुकसान ना पहुंचा दे। फिर मैंने अपने बुजुर्गों से आपके लिए बात की और मशवरा मांगा। आपको अपनाना तो नामुमकिन था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। आखिरकार यही फैसला तय किया कि मैं कुछ वक्त निकाल कर आपकी हिफाजत करूंगा। लेकिन अब चूंकि मेरी मुदाखलत आपको परेशान कर रही है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन ये मेरा वादा है कि जब कभी मुसीबत में आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो मेरा नाम लेकर 3 बार पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। मैं इस इंकशाफ पर हक्का बक्का रह गई। अब मेरी हर परेशानी खत्म हो चुकी थी और अंदरूनी तौर पर सुकून महसूस करने लगी थी। मेरे हर अधूरे सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। बेटी, तुमने कुछ और पूछना है या तुम्हारी तसल्ली हो गई है? शाह जी ने मुझसे पूछा। शाह जी, मुझे सिर्फ इस जिनजाते का नाम मालूम करना है। मेरा नाम जमनाश है। ठीक है जमनाश, मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं है और ना कोई शिकवा है और ना कोई गलत फहमी है। सब कुछ शीशे से किसी धूल की तरह साफ हो गया है। शाह साहब, अब मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपनी दुनिया में जाऊं। जमनाश ने अकीदत से शाह साहब से पूछा। जी बेटे, बिल्कुल तुम्हें इजाजत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारे बुलावे पर आ गए। जमनाश ने मुझे कहा अलविदा और वो ये कहकर गायब हो गया। चचा जान ने शाह साहब का शुक्रिया अदा किया और हम वहां से आ गए। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल हल्की फुल्की सी हो गई और मुझे कोई खौफ नहीं रहा। मेरा बदला हुआ रूप देखकर घर वालों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया।
मेरी जिंदगी अब बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैंने अल्लाह ताला से लो लगा ली, अपनी हर दुआ में जमनाश के लिए दुआएं मांगने लगी। वो मेरा मोहसिन था, मुझे पसंद करता था। जब कभी मैं दुआ मांगती तो उसकी सेहत और अच्छी जिंदगी के लिए भी दुआ जरूर मांगती। दरअसल वो भी मुझे पसंद था, मगर जरूरी नहीं कि जो चीज पसंद आ जाए उसे हासिल भी कर ले। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन और खुशो-खुर्रम हूँ, और जमनाज जहाँ भी रहे शादाबाद खुशियों में हर वक्त घिरा हुआ रहे। मुझे यकीन है कि वो भी अपनी जिंदगी में खुश होगा। जिंदगी की खुशियों में मुझे खुशखबरी एक ये भी मिली कि चचा ने अपने होनहार बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया। कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत और दिलकश है। चचा जान, चची जान और उनका बेटा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हूँ, लेकिन उस जिनजादे को कभी फरामोश नहीं किया। मेरी दुआएं अब भी उसके लिए हयात है।